So, welcome to lecture number 27. What we are going to do today, we will continue our discussion related to, the exponential and logarithmic function. तो हमने बेसिक logarithmic function and exponential functions के बारे में बात की है, but there are a few more basic properties that these functions have. Kind of all the miscellaneous stuff going on. So we will start talking about that today. Okay. So that will be the agenda for today. Chapter number 8, exponential and logarithmic functions. All right. Okay, so let's see what all we are supposed to know. Suppose that, let's say I give you a function which looks like this. Y is equals to a raised to the power x. Okay, let's say this is the function that I give you. Now, if I'm asking you, how do you find dy by dx? So earlier I told you what is y is equals to e raised to the power x. And then if you have to do dy by dx, what do you get? E raised to the power x. E raised to the power x, right? Now we want to understand what will be the derivative of this particular function. Okay? So you know what it is, but suppose that you don't know what it is. Like I assume some of you might have seen it from somewhere, but what is our task right here is that suppose we only know whatever we've studied so far in this chapter. And based on that, if I am asked to solve this, then what will I do? This is your task. Are you understanding your task? कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा है इस चैप्टर में, अगर मुझे उसका यूज करके इसकी डेरिवेटिव वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या होगा? So you understand my task. My task is to find dy by dx for this particular function. But I can't just use the direct formula. Very nice. We can take log on both sides. Very nice. So let's take log on both sides. So what will we get? Log y is equals to log of a x, right? What next? X log a. X times log a. Very nice. Now what should we do? We will differentiate. We will differentiate on both sides, right? With respect to x. So then what happens here? What is the differentiation of log y? 1 by y. Right? And what is the differentiation of y? dy by dx. Okay. Now, what is this? Log a is a constant. A is some value which is constant. So log a is also constant. So log a times x. What is the derivative of that? Log a. Log a. So now what is dy by dx value? Y times log a. And what is y? Y is a raised to the power x. This is my dy by dx value. Right? Yes, ma'am. है कि नहीं? So what does that mean? कि if somebody gives you y is equals to a raised to the power x, what does that mean? कि y prime की value क्या हो जाएगी? A raised to the power x log a. This is what your derivative value is going to be. Fine? Yes, ma'am. Okay. So this is what we will be doing. So this is one thing which you can remember while doing derivatives. ठीक है? अच्छा जी. इसके अलावा are there any other things which we need to understand? Yes, there are things. So, okay. All right. This is clear, right?
Everybody is fine with this? Yes. Okay, perfect. Now let's see. So, so far we've only understood what is the meaning of log. We've only understood what is the meaning of natural log. Okay. What is natural log? So, log x अगर मैं लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है? We've understood a definition also for this, right? What was the definition? कि मैं Its is E. So e raised to its base is e. Yes, that's good. But what is the meaning of this? What is the definition of, like, what does this particular thing means? कि मैं e raised to the power क्या करूं कि मेरा आंसर क्या आना चाहिए? X. मेरा आंसर x आ जाए. तो मैं e की पावर क्या करूंगी? y. कि मेरा आंसर क्या आ जाए? x. ये मतलब होता है इसका. Yes, ma'am. Right. So now I also want to define what is the meaning of. So there is something called natural log wherein we are doing this operation that, okay, what should I put in the power of e so that I will get whatever is written here. But instead of a power e, I might be saying what power should I keep of y so that I get this. And this may be the number जिसकी मैं power करूँ. और ये number a कुछ भी हो सकता है. 2, 10, 15, anything. So what will be the meaning of that? ठीक है? उसका मतलब क्या होगा? So if you do logarithm of x to the base a, अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसको मैं क्या लिखती हूँ? u is equals to log to the base a of number x. और इसका मतलब क्या होता है? What is the meaning of this? कि मैं a की पावर क्या करूं कि मेरा आंसर क्या आ जाए? X. x. तो यहाँ पे a की पावर क्या होगी? log of ax. तब जाके मेरा आंसर क्या आएगा? x. ठीक है. सो अगर आपको log वैल्यू डिफाइन करनी है विद एनी अदर बेस a, तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से डिफाइंड है. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पे आप e रेस टू द पावर ये कर दें तो x आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पे a रेस टू द पावर ये कर दे तो x आ जाएगा. ठीक है. दिस इज द मीनिंग ऑफ फाइंडिंग द लॉगरिथमिक वैल्यू फॉर एनी डिफरेंट बेस देन e. कोई भी दूसरा बेस अगर आप यूज करो तो ये वैल्यू आएगी. ठीक है जी. Yes, ma'am. फाइन. अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मान लो अब मुझे पता है दिस इज द रिलेशनशिप दैट वी हैव, राइट? तो मैं अगर ये देखना चाहती हूँ कि log टू द बेस a एंड log नेचुरल log उनके बीच में क्या कनेक्शन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? सो आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कनेक्शन. What is the connection between natural log and log to any base a? ठीक है. अगर मुझे ये जानना है तो क्या करेंगे? दिस इज, आई नो व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन log टू एनी अदर बेस. ये मतलब होता है log किसी भी और बेस का. क्या मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड log ले सकती हूँ, नेचुरल log ले सकती हूँ? Yes. है ना. तो मैं दोनों साइड टेकिंग नेचुरल log on both sides. What do I get? यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेचुरल log a log x to the base a is equals to log x. This is what I get. है ना. और मुझे पता है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर कोई एक नंबर है जिसकी कोई पावर है तो ये पावर आगे आ जाती है.
राइट। तो ये पावर मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log टू द बेस a x टाइम्स log, अंदर क्या रह जाएगा, a इज इक्वल्स टू log ऑफ x, राइट, Yes, ma'am. है ना। तो log ऑफ x टू द बेस a क्या हो जाएगा, log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a वैल्यू, राइट। Yes. तो ये मेरी log वैल्यू है विद बेस a और ये मेरी log नेचुरल log वैल्यू है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, ये कनेक्शन है, ठीक है, कि log टू द बेस log of x to the base a is nothing but natural log x divided by natural log value at a. This is the connection between these two. Fine. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, तो अब एक बात बताओ, जो हमने अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी थी नेचुरल लॉग के लिए, कि भाई log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, ठीक है। log m डिवाइडेड बाय n क्या होता है, log m माइनस log n, ये होता है, ठीक है। सिमिलरली log m रेज टू द पावर n क्या होता है, n टाइम्स log m, ये चीजें होती है, Yes, ma'am. राइट। तो अब हमने आपको ये तो नहीं बताया ना कि ये सेम चीजें इसके लिए भी एप्लीकेबल है, वी हैवंट टोल्ड यू दैट सो फार, है कि नहीं। So I know that, okay, all of these rules are applicable for natural log, but should they also hold for log to the base a as well? Yes, ma'am. Okay, why? This is the question to you. Now tell me, what is your answer to this? And whatever is your answer, tell me why. What do you think? They should hold or they should not hold? क्या लगता है? Take a guess. Okay, because they are related. They are related as shown in the formula. Very nice. So they should be okay, it should hold. चलो ठीक है, एक चीज शो करके दिखा देते हैं, बाकी चीजें आप देखना। चलो मान लो मेरे को ये जानना है कि भाई log टू द बेस a m टाइम्स n ऐसे दिया हुआ है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, हाउ कैन आई राइट इट। इसको मैं नेचुरल लॉग m टाइम्स n डिवाइडेड बाय log ऑफ a ऐसे लिख सकती हूँ। Yes, ma'am. और ये जो log टाइम्स log m टाइम्स n है नेचुरल लॉग की, इसके लिए तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है, ये मुझे पता है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, log m प्लस log n। गाइस जस्ट गिव मी वन मोमेंट। हाँ जी, ओके। सो आई कैन डू इट लाइक दिस
and then I can divide the entire thing by log of a. What should I do next? Can I do this? Can I do this? Yes, ma'am. And what is this? Natural log m minus natural log m minus natural log a. हाँ, ये तो तब होता है जब ऐसा होता है. मैम नहीं मैम इसको शायद से इधर छोड़ देंगे. ऐसे ही छोड़ देते हैं, चलते हैं, हम घर चलते हैं, है ना. इस पे ध्यान दो. व्हाट इज दिस? ट्राई टू थिंक अबाउट दिस. मैम ये होगा लॉग बेस ऑफ ए एम हाँ, और ये प्लस लॉग बेस ऑफ ए एन. हाँ, तो मतलब ये वाला रूल इसके लिए भी एप्लीकेबल है. यस मैम. यस मैम. हो गया प्रूव. ठीक है. ऐसे ही ये चीज भी एप्लीकेबल होगी और ये चीज भी एप्लीकेबल होगी. सो ऑल दीज रूल्स दैट यू सी हियर, दे आर इक्वली एप्लीकेबल फॉर दिस एज वेल. ठीक है. तो वो सबको भी आप सिमिलर तरीके से शो कर सकते हो. फाइन. यस. So what are some properties which should be kept in mind? First is this, ये property. इसको कैसे लिख सकते हैं? This, ठीक है. log to the base a m raised to the power n. इसको कैसे लिखेंगे? n log to the base a m. ठीक है. ये तीनों चीजें एप्लीकेबल हैं. उसके अलावा मेरे को ये बताओ, log to the base a 1 की क्या वैल्यू आएगी, एंड log to the base a इसकी क्या वैल्यू आएगी? इसका क्या मतलब है? रो आएगा उसका. ओके, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि a की पावर क्या करें कि आंसर क्या आना चाहिए? 1. 1. और इसका मतलब क्या है कि a की पावर क्या करें कि आंसर क्या आना चाहिए? a. तो यहाँ पे a की पावर क्या करनी पड़ेगी? 0. 0. तो इसीलिए ये वाली वैल्यू क्या हो गई? 0. राइट. एंड नाउ व्हाट अबाउट दिस? 1. 1. a की पावर अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 a आएगा. राइट. सो वी शुड कीप 1 हियर. ठीक है जी. क्लियर हो गया ये? तो दीज आर सिमिलर एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज दैट वर एप्लीकेबल फॉर द नेचुरल लॉग, एंड हियर दे आर आल्सो एप्लीकेबल फॉर द लॉग व्हिच इज टू एनी अदर बेस a. ठीक है. इज दैट ऑल राइट? यस मैम. है ना. बहुत ही बढ़िया. तो इन सबको याद रखना है. अच्छा, नेक्स्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ यू. अब मैंने बोल दिया ये फंक्शन है मेरे पास, y is equals to log to the base ax. I have to find the value of dy by dx. What should I do? Use the knowledge that you have learnt till now. You can't use the direct formula and tell me this is what it is going to be. बताओ क्या करें? मैम अप्लाइंग बोथ साइड्स लॉग. अच्छा, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं. चलो, वंशिका की इच्छा पूरी कर देते हैं. फिर अब क्या करें? और मैम डिफरेंशिएट दोनों तरफ. अच्छा, डिफरेंशिएट कर देते हैं. ठीक है. डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 by y dy by dx. dx 1 upon log x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x. 1 upon x कहाँ से आया? मैम log x का डिफरेंशिएट. इसी का तो डेरिवेटिव निकालना था. मैम मैम हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे.
किसी का समझ आया हम कहाँ पे अटक गए? Did we Yes. understand where we are stuck here in this process? नहीं समझ आया ना? नो मैम, ये नहीं आया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज वाई ओनली ना? यस मैम। है ना? मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव मतलब लॉग दिस का 1/log दिस, एंड देन फिर मुझे d/dx किसका करना पड़ेगा? लॉग ऑफ ए एक्स, इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, है ना? यस मैम। बट मेरे को यही तो निकालना था। ये देखो, ये अगर मुझे यस। डेरिवेटिव पता होता तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देती ना, है कि नहीं? ये चीज समझ आई? यस मैम। तो ये पता है ना कि y इज इक्वल्स टू log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ये थोड़ी पता है कि log टू द बेस a x इसका डेरिवेटिव भी 1/x ही होता है। ये तो नहीं बताया किसी ने, यस। है ना? तो प्रॉब्लम समझ आई? यस मैम। तो मतलब हम log नहीं ले सकते क्योंकि हम उसी लूप में फंसे रहेंगे। अब क्या करें? चलो और बताओ ऑल्टरनेटिव। हाँ, Ma'am, it can be written as log x upon log a, वेरी नाइस, and we will differentiate it. वेरी नाइस। dy/dx करोगे तो क्या आएगा? ये 1/something, ये कांस्टेंट है तो ये एज इट इज रहेगा। Yes, ma'am. और 1/x log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/x, तो 1/x log a, ये क्या है? दिस इज y प्राइम वैल्यू। फाइन। Yes, ma'am. So if your y value is this, so if y is equals to log a x implies y prime की वैल्यू क्या है? 1/ln a times 1/x। ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव वैल्यू। क्लियर हो गया? Yes, ठीक ma'am. यस। है, ऑल राइट। अब इसके अलावा और भी एक दो चीजें रैंडमली जो है हमारे को इम्पोर्टेंट है, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ग्राफिकली, ठीक है, बिफोर डूइंग एनीथिंग। ओके, अच्छा एक बात बताओ कि मान लो सपोज आपको किसी ने एक फंक्शन दे दिया g(x) इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग x, ठीक है? तो g प्राइम x की वैल्यू क्या होती है? 1/x. 1/x। वेरी नाइस, ठीक है। g प्राइम x की वैल्यू क्या होती है? 1/x, ठीक है। अच्छा, तो अगर मेरे को x की वैल्यू 1 पे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी होगी तो वो क्या होगी? 1. वो 1 होगी, ठीक है। तो अब मैं 1 मिनट के लिए ये जानना चाहूंगी आपसे
कि भाई G'1 की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब G'1 एक्चुअली क्या चीज है। G'1 1 है, लेकिन जो हमारी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन होती है उसके हिसाब से अगर मेरे को G'1 निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, लिमिट निकालूंगी किस चीज पे, G ऑफ 1 प्लस H minus G of 1 divided by H and limit that H is tending to 0. Yes or no? Yes, ma'am. यही होता है, ठीक है ना। और ये वैल्यू किसके बराबर है मेरे पास, यहाँ पे 1 के बराबर है ना। तो मेरा G फंक्शन क्या है, यहाँ पे log ऑफ क्या है, व्हाट इज log 1 प्लस H माइनस log ऑफ 1 divided by H and limit that H is tending to what, 0, Yes. है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, ये लिमिट तो मैं बाद में निकालूंगी, ये जो लिमिट है ये तो चलो मैं निकालूंगी, लेकिन इसके पहले मैं log m माइनस log n इसको कैसे लिख सकती हूँ, log m अपॉन n लिख सकती हूँ। Yes. तो ये एक m है, ये एक n है ना। Yes. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या, लिमिट as h is tending to 0 log value 1 plus h divided by 1, right, and then this is 1 by h, ऐसे लिख सकती हूँ, Yes. है ना। अच्छा अगर मुझे इस तरीके से चीजें दी हुई हैं n टाइम्स log m, क्या मैं इसको log ऑफ m रेज टू द पावर n ऐसे लिख सकती हूँ, Yes. है ना। तो ये जो मेरा 1 बाई एच है ये तो बाहर ही है, तो मैं क्या इस पूरे की पावर 1 बाई एच नहीं लिख सकती, Yes. है ना। तो मैं इस चीज को कैसे लिख दूं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट एज h इज टेंडिंग टू 0 log वैल्यू ऑफ 1 प्लस h रेज टू द पावर 1 बाय h, ऐसे लिख सकते हैं। Yes, ma'am. But had we learned that inverse of log rules aren't applicable, as log m, log n can't be written as log m. No, when did we learn that? I said log m times n can be written like this. So I can also, if I know this, I can also write it like log m times n. They are equal, na? It's not like if this implies this. It's not implied, it's equal, na? So you can use it both ways. There is no issue with that. Okay? Yeah. हाँ जी, तो हम इस स्टेप पे आ गए, यहां तक आ गया, ये सबको समझ क्या कर रहे हैं। Yes, ma'am. Yes. ठीक है, अच्छा तो और इसकी वैल्यू, इस पूरे चीज की वैल्यू क्या है, 1, है ना, Yes, ma'am. राइट। अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को कि ये लॉग जो वैल्यू है, ये पूरा का पूरा सिस्टम मेरे साथ क्या है, ये पूरी वैल्यू किसको टेंड कर रही है, 1 को, एज h इज टेंडिंग टू 0, Yes. राइट। तो इसका मतलब अंदर वाली जो वैल्यू है वो किस नंबर के नजदीक जा रही होगी, 1 के. अगर अंदर वाली वैल्यू 1 के नजदीक जा रही होगी फिर तो ये लिमिट 0 को टेंड करनी चाहिए। log what value is 1, 0. 0. log Sorry. log e वैल्यू, log 0 It, तो डिफाइंड भी नहीं होता है, log 0 डिफाइंड होता है, no, ma'am. नहीं होता ना।
तो log 0 निकाल रहे हो, वाह, सब पानी में चला गया। log 0 गलती से निकाल के मत आ जाना, log 0 इज नॉट डिफाइंड, ओके, डोमेन ही नहीं है ये। log 1 क्या होता है? 0 हाँ, और log e क्या होता है? 1 1। इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है, चलो, ओके। तो मतलब अंदर ई होना चाहिए, तब जाके ये वैल्यू 1 को अप्रोच करेगी, है Yes. है ना? अच्छा, तो ओके, वेरी नाइस। तो इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये पूरी लिमिट अगर 1 को जा रही है, तो इसका मतलब ये जो भी अंदर चीजें हैं ये किधर जा रही होंगी, किस नंबर को अप्रोच कर रही होंगी? E तो what am I saying? I am saying 1 plus h raised to the power 1 by h। लिमिट अगर मैं इसकी निकालू एज h इज टेंडिंग टू 0, तो ये किस नंबर के बराबर होनी चाहिए? ये वाला नंबर किसको अप्रोच करेगा? E. हाँ, तो ये लिमिट किसको जाएगी? E. ई को। ये चीज समझ आ गई? Yes. ठीक है, क्लियर हो गया ये, Yes. है ना? तो ई एक्चुअली जो नंबर है वो इस तरीके से भी आ जाता है, लास्ट स्टेप। ओके, सो व्हाट एम आई सेइंग दैट सिंस दिस इंटायर लिमिट वैल्यू इज गोइंग टू 1, that means whatever is inside should be going closer and closer to e, because that is the only way this can be 1, right? So what am I saying? Whenever h is becoming closer and closer to 0, whatever is inside that must be going closer and closer to e, because only then this log value can come close to 1, right? Yes. So that is what we are saying. तो ये मेरी एक लिमिट है जो यूज हो सकती है कई बार, ठीक है, क्लियर हो गया? Yes. ओके जी। अच्छा, अब मेरे को कोई एक बात ये बताओ, अगर मैंने ये शो कर दिया, अब मैंने आपको मान लो ये चीज निकालने को बोला, लिमिट एज n इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1 + 1 by n रेज टू द पावर n, तो वो क्या होगी? मैम 2 2। ओके, कैसे आया 2? मैम it is converging to 2 हाउ? हाउ 2? Ma'am, if n is approaching to infinity, then this 1 by n will become 0, and 1 raised to the power n. If we increase the value of n till infinity, then it would be, I think, 2. Means it will approach to 2. Okay, I am very fascinated in knowing where is this 2 number coming from. मतलब 1 + something 0 रेज टू द पावर इंफिनिटी क्या आएगा? वो तो 1 ही आना चाहिए ना, है कि नहीं? मैम एक बार आपने बोला था कि 1 का पावर होता है 1 point something, so it will always converge to 1. ओके, 1 की पावर कुछ भी होती है तो वो
1 point something power हाँ will converge to 1. 1 point something raised to the power 1. Not, ma'am, 1 point something raised to the power something will always tend to 1. Okay. When did this happen? अच्छा ये सब भूल जाओ, जो आपकी नजरों के सामने है उस पे ध्यान दो. Can you try to use this to find this limit? And the answer would be 1 raised to the power infinity, which is 1, right? So this number is just approaching 0, right? But it won't actually be 0, right? Yes, ma'am. And that very, very minute number has a very big power. मान लो ये नंबर ऐसा होता, ये नंबर है, और इसकी पावर अगर इनफाइनाइट कर दोगे ना तो ये आंसर इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज बोथ दीज वैल्यूज आर साइमल्टेनियसली चेंजिंग. अच्छा एक बात बताओ, अगर h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है, और मैं बोल दूं n इज इक्वल्स टू 1 by h, तो वेयर इज n गोइंग इफ h इज टेंडिंग टू 0? Infinity. Infinity. Can I use this transformation here? So what will I get? 1 plus h की जगह पे मैं 1 by n लिख दूंगी, right? है कि नहीं? My h value is 1 by n. Yes, ma'am. And 1 by h is what? N. Right? What is 1 by h? N. Yes, ma'am. और यहाँ पे अब जब सब कुछ आपने n की जगह पे लिख दिया है, तो ये वाली लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? n टेंडिंग टू इंफिनिटी. तो ये एक्सप्रेशन तो बिल्कुल यही एक्सप्रेशन है ना, राइट? है ना? So if Yes. I just replace in place of h, if I replace 1 by n, so I'm exactly going to get this only, right? Yes. And limit h tends to 0 की जगह n tends to infinity बोल दो, right? तो ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? बिकॉज ये एग्जैक्टली यही है, और इसकी लिमिट मुझे पता है क्या है, e, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? E. e आ जाएगा. ये चीज समझ आई? Yes. ये सबको क्लियर हुआ? Yes, ma'am. है ना? क्लियर हो गया? गुड. Okay, Bhavya, Narmada, guys, okay with it? Yes, ma'am. Okay, very nice. ठीक है, okay, very nice. Let's do some more things now.
Okay, let's see. Let's try to find another limit. If this was given in a normal limit question, do we do like this? If it's in a normal limit question, you can directly use this. It won't be actually asked like normally like this. You can use this result directly anywhere. If they have given you something like this, you can directly use it. Okay. Because this is a result now. Then 1 would be answer meaning. Yeah, E would be the answer. Yes, yes, definitely. E would be the answer of the limit. Yeah. Okay, all right. So let's see. अच्छा एक बात बताओ, एक कुछ चीजें दिखाती हूँ मैं आपको ग्राफ पे अभी, 1 मिनट. Can you guys see my screen? Are you guys able to see the screen? Yes, ma'am. ओके, ऑलराइट, चलो अब मान लो ना अलग अलग ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, मान लो x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. ठीक है, इसका एक ग्राफ बनाया और एक ग्राफ बनाया y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ बनाया. तो कैन यू सी हाउ दे आर बिहेविंग? इनका बिहेवियर आप देख रहे हो कैसा है? कैसा बिहेवियर है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये ब्लू कलर का ग्राफ किसका है? e पावर x का, राइट? तो e पावर x जो है धीरे धीरे एक्स स्क्वायर और e पावर x इसका जो ग्राफ है उनके बीच में गैप बढ़ते जा रहा है. यस और नो? द गैप बिटवीन देम इज राइजिंग. यस या मान लो x पावर 4 लिखा, ठीक है, and e power x. So basically what is happening after a point, as x is taking very big value, the gap between yeah the gap between e raised to the power x, the blue graph is e power x. ठीक है, blue graph is e power x. Yeah, ऊपर जाके मेरा e पावर x जो है, जैसे ही मैं x की बहुत बड़ी वैल्यूज ले लेती हूँ. Okay, I just want to see where e power x is starting to dominate it. There will come a point when the blue one will start dominating it. Okay, let me not do that. Wait, let's do something like this.
This will tell us which is bigger, which is not. What is this telling us? कि ये जो वैल्यू है ना, मान लो मैंने x रेस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई e रेस टू द पावर x निकाला, ये वैल्यू धीरे धीरे किधर जा रही है? इट्स बिकमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 0, राइट? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू किसको राइज करेगी? 0 को टेंड करेगी, राइट? अब यहाँ पे चाहे आप x पावर 2 लिख लो तो भी ऐसा ही हो रहा है. This ratio is going closer and closer to 0. Similarly, मान लो यहाँ पे आपने 2 e पावर x की जगह पे मान लो आपने क्या किया? 5 रेज टू द पावर x. तब भी ये सेम ही बिहेवियर फॉलो हो रहा है कि ठीक है, कुछ वैल्यूज ऊपर थी एंड देन दे स्टार्टेड गोइंग डाउन. यस और नो? Yes. तो व्हाट एम आई सेइंग? आई एम सेइंग एज लॉन्ग एज यहाँ पे जो भी आपका यू नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जनरल, उसमें ए की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी हो, ठीक है, ए वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे आपकी एक्स की कोई भी पावर हो, एक्स की पावर यहाँ पे सिर्फ एक्स भी हो सकती है, मान लो इट इज दिस, then also the same thing is happening, right? Yes. है ना? तो ये एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बन रहा है x की कोई भी पावर p डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर x, और एज लॉन्ग एज ये a वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 की जगह कुछ और कर दिया ना, मान लो 0.5, तो ये रिजल्ट नहीं रहेगा. तब क्या हो रहा है? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, ये वैल्यू भी राइज कर रही है, राइट? तो as long as you keep it something greater than 1, then it keeps following that same pattern, that as x value is going higher and higher, this number is becoming closer and closer to 0. So with that, we come to a result with us. What is that result? Let me write it for you now. And then we will try to prove why this happens. इसको prove भी करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है. But graphically हमने क्या देखा? नीचे जो पावर है अगर वो 1 से, उसमें जो बेस है वो 1 से बड़ा हो और ऊपर x की कोई पावर हो, तो जैसे जैसे x की वैल्यू राइज करती है, ये जो नंबर है ये 0 को टेंड करने लग जाता है, ठीक है? दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव. सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट द रिजल्ट इज नाउ. क्या रिजल्ट है वो देखते हैं एक बारी. सो व्हाट एम आई सेइंग? If you have the following, so if we find the limit as x tends to infinity of what? Of x raised to the power p divided by a raised to the power x, तो वो क्या होगी? 0. और ये 0 कब होगी? If a is greater than 1 and p is any arbitrary positive number. तो अगर आपका p कोई भी एक आर्बिट्ररी पॉजिटिव नंबर है और ये जो a वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 है, तो अगर आप इस वैल्यू को निकालोगे एज x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सो दिस विल स्टार्ट कमिंग इक्वल टू 0. ये हमारा रिजल्ट है. तो जो हम अलग अलग ग्राफ्स देख रहे थे उसमें जैसे जैसे x की वैल्यू राइज कर रही थी, ये नंबर 0 को टेंड कर रहा था. यही मैं शो करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है? ये रिजल्ट समझ आ गया कि क्या है? इसको प्रूव करेंगे हम अभी थोड़ी देर में. दिस इज माई रिजल्ट, ठीक है? Yes. ओके जी. चलो तो अब इसका मतलब ये 0 को टेंड क्यों कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला नंबर अल्टीमेटली जैसे ही x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती है, ये वाला नंबर हावी हो जाता है एज कंपेयर टू दिस, Yes. राइट? सो दिस नंबर ओवर पावर्स दिस नंबर, ऑल्दो यहाँ पे भी इंफिनिटी की पावर p कर रहे हो,
और नीचे क्या कर रहे हो, ए रेज टू द पावर इंफिनिटी। दोनों ही नंबर बड़े हो रहे हैं, बट ये वाला नंबर शायद बहुत रैपिड स्पीड से ग्रो कर रहा है कि इस नंबर ने इस नंबर को ओवर पावर कर लिया। तो इसीलिए एक चीज बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियल्स ड्राउन्स पावर्स। तो जो भी पावर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ने उसको ड्राउन कर दिया अपने अंदर। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रोज रैपिडली एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, ये मतलब है इस चीज का। अच्छा, अब इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू एज एक्सिस टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर 0 को टेंड कर रही है, तो मैं क्या ये शो कर दूं कि अगर मैं लॉग वैल्यू निकालूंगी किसकी, x रेज टू द पावर p डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर x की, तो वो वैल्यू विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी एज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो क्या ये बात और ये बात सिमिलर होंगी? मैं क्या बोल रही हूँ कि मुझे प्रूव करना है कि ये वाला नंबर 0 को टेंड करता है, राइट? तो मैंने अगर ये शो कर दिया कि log ऑफ दिस नंबर टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी एज x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो इज दैट इनफ टू शो? ओ मैम ये समझ नहीं आया, मतलब कैसे माइनस इन्फिनिटी आया? log की वैल्यू जैसे 0 के नजदीक आती है तो log क्या वैल्यू लेता है? log 0 में डिफाइंड नहीं है, लेकिन 0 के जब बहुत नजदीक होता है तो log वैल्यूज कहाँ पे जाती हैं? माइनस इन्फिनिटी। है ना? तो मैं अगर ये शो कर दूं कि भाई इसका जो भी log आएगा वो माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो क्या मैंने यही शो किया कि हाँ ये वाला नंबर 0 को टेंड कर रहा होगा, तभी तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, राइट? यस। ये चीज समझ आ गई यस। सबको? चलो, अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि लॉग के साथ इस सब को डील करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है ना? तो मेरा टास्क है इसकी ये लिमिट निकालना। व्हाट इज दिस लिमिट गोइंग टू बी, दैट इज व्हाट माय टास्क इज। ठीक है, ये निकालना है मुझे। ओके, तो व्हाट शुड वी डू नाउ? सो अब ये जो लॉग वैल्यू है ये वाली, इसको आप कैसे लिख सकते हो? लिमिट एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, राइट? तो मेरे को मेरा टास्क है ये निकालना कि भाई ये क्या आएगा। तो अब हमारा टास्क समझ आ गया हमें, तो हम अपने टास्क पे काम करते हैं अभी। तो व्हाट इज द लिमिट वैल्यू एज एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस लॉग वैल्यू? तो अब इस लॉग वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, log x रेज टू द पावर p माइनस log a रेज टू द पावर x, राइट? यस। है ना? और इसको और कैसे लिख सकते हैं? लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी p log x माइनस x log a, ऐसे लिख सकते हैं, यस। है ना? तो ओके, वेरी नाइस। अब क्या करें? मान लो मैंने x कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट एज x is tending to infinity, ठीक है, आई एम टेकिंग x कॉमन। इफ यू टेक x कॉमन, what happens? You are left with p log x divided by x minus log of a, right? Yes. यस।
है ना। तो ओके, अब क्या करें इसके बाद? मेरे को तो ये लिमिट निकालनी है एज एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। व्हाट शुड आई डू? अच्छा, अब एक बात बताओ, बिकॉज ए इज ग्रेटर देन 1, लॉग ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? लॉग 1 0 होता है, राइट? लॉग 1 Yes, ma'am. क्या होता है? 0। लॉग 1 इज 0। तो जैसे ही ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा। Yes, ma'am. ओके, और बिकॉज ये वाला नंबर पॉजिटिव होगा, तो ये बाहर जो माइनस है उसके साथ ये नंबर नेगेटिव होगा, है ना। और मैं किसी तरह मान लो ये शो कर दूं कि ये नंबर 0 को टेंड कर रहा है। अगर अगर मैंने ये शो कर दिया कि ये नंबर 0 को टेंड कर रहा है, जैसे एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ये तो टेंडिंग टू 0 है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव है, और एक्स विल गो टू इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल नंबर शुड गो टू माइनस इन्फिनिटी। Yes, ma'am. अभी मेरा टास्क मैंने क्या डिफाइन कर लिया? ये शो करना कि ये वाला जो नंबर है ये 0 को टेंड करेगा एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, राइट? सो if I show that log x divided by x tends to 0 as x tends to infinity, तो दैट इज इनफ टू शो दैट ये ओवरऑल नंबर माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि ये तो 0 को जा रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, और ये x विल गो टू इन्फिनिटी, सो दिस टू मल्टीप्लीकेशन विल गो टू माइनस इन्फिनिटी। यस और नो? है ना। अच्छा, तो हमारा टास्क क्या निकल के आ गया अब फिर से, कि आपको लिमिट किसकी निकालनी है एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। ये क्या होगी, ये निकालना है, राइट? ठीक है, अब ये वैल्यू क्या होगी? ये लिमिट निकाल के बता दो क्या होगी। 0. कैसे? Ma'am, x denominator में है and it is infinity. हाँ, तो ये 0 हो जाएगा. और log x का log x क्या करेगा? log इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी ही होता है ना। Yes, ma'am. log इन्फिनिटी भी तो इन्फिनिटी होता है, तो ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया। फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को कैसे डील करते हैं? L'Hopital. लॉपिताल्स रूल। लॉपिताल्स रूल में क्या करते हैं? Derivative. डेरिवेटिव लेंगे, तो लॉपिताल्स रूल लगाएंगे तो क्या होगा? लिमिट as x is tending to infinity of what? The derivative value. What is the derivative of log x? 1 by x. And what is the derivative of x? 1. 1। तो मुझे लिमिट किसकी निकालनी है? 1 by x की। Yes, ma'am. और ये लिमिट क्या होगी? 0. 0। तो मैंने शो कर दिया कि ये नंबर 0 को टेंड कर रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. और अगर ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये ओवरऑल नंबर किसको टेंड कर रहा है? Minus infinity. और अगर ये ओवरऑल नंबर माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये किसको टेंड कर रहा है? 0 को. 0। तो हो गया प्रूफ। Yes, ma'am. ठीक है, लॉन्ग वे बट ठीक है, दिस इज हाउ वी हैव शोन दैट this actually goes to 0 whenever a is greater than 1 and p is any positive number। ठीक है, क्योंकि अगर p पॉजिटिव, चलो p तो खैर कुछ भी हो चलेगा हमको, बट एनीवेज p is a fixed number। ठीक है, फाइन, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, वेरी नाइस। तो मैम इसमें डाउट था, लिमिट x टेंड टू 1 अपॉन x कैसे आया? एक सेकेंड, हाँ जी, ये
यस। लॉपिताल्स रूल लगाया हमने यहाँ पे, ओके। है ना, क्योंकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी डेरिवेटिव। है ना, यस। इसका डेरिवेटिव लेके ये 1/x बच गया बस। ठीक है, ऑल राइट। फाइन। अच्छा, एक फाइनल चीज और कर लेते हैं, ठीक है। विच इज, मान लो अगर आपको टेलर्स एक्सपेंशन करना हो, फॉर ई रेज टू द पावर एक्स, तो आप क्या करोगे? यू रिमेम्बर व्हाट वाज टेलर्स एक्सपेंशन? यस मैम। क्या करते हैं टेलर्स एक्सपेंशन में? मैम एफ ऑफ ए और एफ डेरिवेटिव ए अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस। ये क्या मतलब, टेलर्स एक्सपेंशन क्या देता है मुझे? मैम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फंक्शन, मान लो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स, राइट? तो एफ ऑफ एक्स यस। की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसके बराबर होगी? एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ एफ प्राइम ए एक्स माइनस ए अपॉन में 1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एफ डबल डेरिवेटिव ए एक्स माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से हो जाएगा, ये चलता रहेगा जितना भी आप पावर एंड तक लेना चाहो। मान लो आप एंड में एन तक ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा ये? राइट? Yes, यस ma'am. और एक चीज और हमने देखी थी, जब इस टेलर्स एक्सपेंशन में हम रिमाइंडर डाल देते हैं तो क्या होता है? मतलब ये अप्रोक्सीमेशन को अगर मुझे इक्वल करना हो तो क्या करूंगी मैं? मेरी एंड में एक रिमाइंडर टर्म आएगी, Yes, ma'am. और वो रिमाइंडर टर्म कैसी होती थी? N+1. सी, ये होता था। और Yes, ma'am. एक्स की जगह क्या लिख देते थे? एक्स माइनस ए ही होता था ना लास्ट टर्म। हाँ, यही होता था। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू हैव, दिस वाज माय रिमाइंडर टर्म। Yes, ma'am. ओके, सो मान लो मुझे ये निकालना हो कि मुझे टेलर्स एक्सपेंशन करना हो ई रेज टू द पावर एक्स का अराउंड एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो वो क्या होगा? ई पावर एक्स का कितनी भी बार डेरिवेटिव कर लो, हमेशा वैल्यू क्या आती है? ई पावर एक्स। ई पावर एक्स ही आती रहेगी, चाहे कुछ भी कर लो। ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, फिर ई पावर एक्स का फिर से ई पावर एक्स, ई पावर एक्स विल कीप कंटिन्यूइंग, राइट? तो all of these derivative values are going to be e power x only, and which is exactly equal to my function value, right? फंक्शन वैल्यू भी यही है, ई पावर एक्स, राइट? यस। ठीक है, तो मान लो मुझे अराउंड x इज इक्वल्स टू 0 अगर ये एक्सपेंशन करना हो, तो मेरी ई पावर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई पावर 0, व्हाट इज ई पावर 0? 1. 1 प्लस एफ प्राइम 0, एफ प्राइम 0 क्या हो जाएगा? 1. वो भी 1 रहेगा, बिकॉज एफ प्राइम 0 is e power 0 again, f double prime 0 is what? Again e prime 0. तो ये सारी वैल्यूज e prime 0 ही होंगी,
ई पावर 0 ही होंगी, राइट? ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, यस, Yes. है ना? तो हर जगह ये 1 ही होगा, तो इसका तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मेरे पास जो वैल्यूज बच जाएंगे वो क्या है, और एक्स की वैल्यू मैंने, ए की वैल्यू मैंने 0 ली हुई है, तो a value is 0, तो what will I be left with? 1 plus x divided by 1 factorial plus x square divided by 2 factorial plus x cube divided by 3 factorial plus इस तरीके से x raised to the power n divided by n factorial plus क्या हो जाएगा? What will happen to this? This is e raised to the power c, है ना? What will this Yes. e raised to the power c? So x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial e raised to the power c, राइट? ये चीज क्लियर हो गई, Yes, ma'am. है ना? तो और मैम ये लास्ट टर्म कैसे आई, इसमें डाउट। ये वाली, यस मैम, रिमाइंडर टर्म उसमें। ये चीज समझ आ गई, यस मैम। है ना? ये क्या है, मैंने अपने फंक्शन को n+1 टाइम डिफरेंशिएट किया है, यस। मेरे डेरिवेटिव वैल्यू तो e पावर x ही रहेगी, यस मैम। और जो वैल्यू पुट करनी है वो c करनी है, ओके, तो ये e समझ। पावर c हो गया, ठीक है? यस। ओके जी, ऑल राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि for x values which are very close to 0, this is the formula that we can directly use, right? यस। और x की वैल्यू अगर बहुत क्लोज टू 0 है, तो ये वाला नंबर किसको अप्रोच करेगा? ये नंबर बहुत क्लोज टू 0 ही हो जाएगा, तो रिमाइंडर बहुत ही छोटी वैल्यू लेगा, राइट? यस। है ना? फाइन, ओके जी। ऑल राइट, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। All right. So these were few, minute concepts that you needed to understand. इसके बाद जो है, जो चीज हमें करनी होगी वो है एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। अब पूरा एप्लीकेशन पार्ट आएगा कि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन का रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है, एनवायरमेंट में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो प्रेजेंट डिस्काउंटिंग वो सब भी होगा यहाँ पे, तो वो सब भी हम लोग देखेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, वी विल बी डूइंग अ फ्यू प्रॉब्लम्स फ्रॉम वट एवर वी डिस्कस टूडे, तो वो हम लोग देखेंगे आज, ठीक है? तो थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे, एंड उसके बाद जो है, आई थिंक प्रॉब्ली फ्रॉम 8 o'clock लेट्स ट्राई टू टेक अप योर प्रॉब्लम्स, ठीक है? I won't be able to extend the class beyond 8:30 because I have another class at 9. So let's try to be within that limit. ठीक है, चलो। तो आज के जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उस पे बेस्ड जो है, अब थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है? चलो, एक क्विक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इट्स 7:27. Let's continue at 7:38. I'll see you guys in 10 minutes. Thank you. All right. So my goal is to show, my goal is to show that this approaches 0 whenever x is going to infinity, right? So if I'm able to show that log value of this approaches minus infinity whenever x goes to infinity, that is enough to show this. Because अगर ये 0 को अप्रोच करता है और log जब 0 के नजदीक आता है तो कौन सी वैल्यू ले लेता है? माइनस इन्फिनिटी। Where does log
if you start going closer and closer to 0, what does log value take? Minus infinity. So that is why I'm trying to figure out the log value of this. And then I'm asking, ki, okay, does this go to minus infinity whenever x is going to infinity? Okay, ma'am. If Yes. this goes to minus infinity, that means whatever is inside must be going closer and closer to 0. Okay, ma'am. Okay. All right. Chalo, theek hai, very nice. Okay, so let's do some questions now. So first question is, please find this. Log, so you have to find the value of x, okay? So log of x plus e raised to the power, this entire thing raised to the power 3 minus log of x plus e. First, this is power 2. And then this entire thing is to the power 2. This is equals to log of x plus e minus 4. You have to solve for x. You have to find the value of x. That is your goal. So question clear है? एक equation दी हुई है. You are given one equation and you have to find the value of x from here. So what should we do? क्या करना चाहिए? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, ma'am. तो फिर बताओ क्या करें? मैम शायद से लॉग ले सकते हैं पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ. अच्छा, उससे क्या होगा? उससे मैम शायद से कुछ इधर उधर करके वैल्यूज को सॉल्व हो जाए. ले लिया हमने लॉग, अब बताओ क्या करेंगे? किसको इधर उधर करें? मैम लॉग m माइनस लॉग n. हाँ, तो ये log m माइनस n तो है ही नहीं. ये तो log के अंदर log ऑफ m प्लस n है. ये कुछ होता यस. है? नो मैम. तो ये तो नहीं कर सकते. फिर और क्या? What else can we do? Ma'am, बोलो. can differentiate it? We can differentiate it. Hmm. Okay, differentiation से क्या होगा? Simplify हो जाएगा. ओके, बेसिक चीजें करो पहले. क्या क्या हो सकता है वो बताओ. बेसिक. इसकी पावर 2 है, ये पावर 2 बाहर आ सकती है. यस. तो ये क्या हो जाएगा? इस पूरे का होल स्क्वायर. राइट? Yes, ma'am. And this thing is equals to log of x plus e minus 4. Right? है ना? यस. Yes, ma'am. ये स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा. log of x plus e होल स्क्वायर.
और इधर log of x plus e होल क्यूब, राइट, और इधर माइनस, और इधर log of x plus e minus 4, राइट। ठीक है, Yes. तो क्या कर सकते हैं फिर? अगर मैं इस log of x plus e को मान लो y लिख दूं, ठीक है, सपोज, तो मेरे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी? All. y cube minus 4y square is equals to y minus 4, राइट, Yes, ma'am. है ना? ओके, इधर क्या है? y क्यूब, यहां से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ? y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? y माइनस 4, Yes, ma'am. और इसको मैं इधर लेके आ सकती हूँ इस साइड पूरे को, माइनस ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, राइट। Yes. Yes. कैन आई टेक y माइनस 4 कॉमन एवरीवेयर? Yes. I get y square minus 1 is equals to 0. Yes. Yes, ma'am. Right? This is Ma'am, fine. if we would have not taken y minus 4 to the left hand side, we would have got y square equal to 1, right? No, you cannot cancel it, na? What if this is 0? So अगर आप ये ऐसा नहीं करते, मान लो ये ऐसे रखते, ठीक है, तो अगर ये 0 है ना, Yes, ma'am. और ये भी 0 है, मतलब obviously if this is 0 then this is also 0, then y can take any value, na? Yes, ma'am. Yes. So not necessary, because if you just cancel it like this, you can only cancel it if it is non-zero. If it is 0, then you don't know, right? Yes, ma'am. In order to ensure that we are taking all the possible values, we don't usually cancel like this. Okay? Okay. All right. तो मेरी y की possible values क्या क्या हो गई? Y is equals to 4, y is equals to 1, and y is equals to minus 1, right? ठीक है? तो मेरा y क्या है? This log of x plus e is equals to 4, log of x plus e is equals to 1, log of x plus e is equals to minus 1, right? This is fine. तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो अब बताओ x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब तो it should be easy now. What should we do? What is the meaning of this? X plus e equal to e raised to 4. कि e की पावर क्या करें? 4 की क्या आ जाए? x plus e, right? Yes, तो ma'am. वैल्यू कितनी आ गई? e पावर 4 माइनस e, right? Yes, Yes, ma'am. ma'am. And what about this? कि e की पावर 1 करें तो क्या आ जाए? x plus e. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0, right? Yes, ma'am. And now what about this? कि e की पावर क्या करें? -1 की क्या आ जाए? x plus e,
right? So what is x now? E power minus 1 minus e. Yes or no? Yes, ma'am. तो और ये तीनों ही वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू ये भी e है, इसकी वैल्यू ये e पावर माइनस 1 है. e पावर माइनस 1 क्या होता है? 1/e, विच इज अ पॉजिटिव नंबर, राइट? Yes, ma'am. Yes. मेरा सोल्यूशन आ गया, ठीक है? Yes. तो इस तरीके से जो बेसिक चीजें हैं उसको सॉल्व करो और फिर देखो कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, ठीक है? कर लेंगे इसको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी नाइस, ठीक है. ऑल राइट, लेट्स डू समथिंग एल्स. Okay, please find these three things. Find the limit using L'Hopital's rule. Okay, what limits you have to find? Limit as x is tending to infinity of x raised to the power 1 by x. This is the first thing. The second thing is limit as x is tending to 0 positive, x times log of x. Third is find limit as x is tending to 0 positive, x raised to the power x. These are the three limits that you have to find. Okay? हाँ जी, बताइए क्या करें? Let's start with the first part. Let's start with this. I have to find this limit. Limit x raised to the power 1 by x as x is tending to infinity. क्या करें? Ma'am, first of all, we will differentiate x raised to the power 1 by x. Okay, why are we differentiating? Because we need to use L'Hopital rule. It is already mentioned. हाँ, we have to use L'Hopital's rule. ठीक है, तो L'Hopital's rule के में क्या करते हैं? क्या फॉर्म आपको पहले इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी? या तो 0/0 फॉर्म होनी चाहिए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होनी चाहिए. ऐसा कुछ आपने दिखाया है क्या? We haven't shown that, right? Yes, ma'am. I can't use it like that, है ना? है कि नहीं? Yes, ma'am. So I need to first show that I am actually applicable to apply L'Hopital's rule. मतलब I have enough reason to apply L'Hopital's rule. तो मुझे या तो 0/0 फॉर्म दिखानी पड़ेगी या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म दिखानी पड़ेगी. तो क्या कर सकते हैं? Ma'am, first we'll equate y to x raised to 1 by x, then take log. सो बेसिकली मैं क्या कर लेती हूँ कि इसकी लिमिट निकालने की बजाय इसकी लॉग वैल्यू की लिमिट निकाल लेती हूँ, फिर वहां से कुछ रिवर्स कर सकते हैं, राइट? Yes. तो मान लो आपने इसका लॉग ले लिया, मान लो आपको y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1 बाय x आ गया, ठीक है? आपने लॉग ले लिया दोनों तरफ, तो क्या आ गया? 1 बाय x log ऑफ x, राइट? है ना? आप क्या कर लो, ये जो y वैल्यू है इसकी log वैल्यू की लिमिट निकाल लो. मतलब एज x इज टेंडिंग टू 0, x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ट्राई टू फाइंड व्हाट दिस लिमिट इज. तो ये जो लिमिट है, क्या ये 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है? न्यूमरेटर में जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी,
एंड नीचे इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। और मैम जीरो। हम्म और मैम एक सेम क्वेश्चन पहले किया था ना, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी, और ये वाला एक्सप्रेशन जीरो होता है। कौन सा एक्सप्रेशन जीरो होता है? मैम ये साइड वाला, राइट साइड वाला। ये? यस मैम। अच्छा, ये आप रिजल्ट बता रहे हो? यस। हाँ, ये हमने शो किया था जस्ट नाउ, थोड़ी देर पहले, ये वाली वैल्यू, दिस, राइट? यहाँ पे भी यस। लॉपिताल्स रूल ही लगाया था, है ना? यस। तो एग्जैक्टली, वेरी नाइस, शार्प मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो मैं ये लिमिट निकालने के लिए लॉपिताल्स रूल लगा सकती हूँ। यस। तो आप क्या करोगे, लिमिट एज एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप क्या करोगे, लॉग एक्स का 1/x होता है और x का 1 होता है, तो आप ये लिमिट निकाल लो। ये लिमिट कहाँ पे जाएगी, 0 पे, राइट? यस मैम। एंड this value if this value अगर ये लिमिट जो है ये 0 को जा रही है, तो इसका मतलब जो अंदर है वो कहाँ जा रहा होगा, माइनस इंफिनिटी। log 0 कब होता है, log जो है वो वैल्यू 0 कब लेता है? इससे यही तो आया ना, एज एक्स इज टेंडिंग टू इंफिनिटी log y is tending to 0. For what value of y will this go close to 0? 1, right? तो अगर मेरी log के अंदर जो वैल्यू है वो 1 को अप्रोच करेगी, तभी तो ये log y वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी, राइट? यस मैम। सो मतलब व्हाट डू आई नो, y must be tending to 1 as x is tending to infinity, right? यस मैम। And what is y? This. तो मेरी लिमिट वैल्यू क्या आ गई, what is my limit value? So your answer is 1. ठीक है, is this okay? यस मैम। कर लेंगे? यस मैम मुझे। Okay जी, very nice. What about this now? मैम इसे भी डिफरेंशिएट। इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे, कैसे, क्यों? और मैम एल L'Hopital के अकॉर्डिंग। लॉपिताल रूल क्या बोलता है? और मैम डिफरेंशिएट करते हैं जो लिमिट की वैल्यू के अंदर जो भी। ये नहीं बोलता लॉपिताल रूल। और मैम 0/0 फॉर्म बन रही हो तब। हाँ, तो पहला स्टेप क्या है, 0 0। है या नहीं चेक करना। तो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, वो कैसे चेक करेंगे? और मैम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो नहीं बनेगी। नहीं बनेगी, वेरी डिसअपॉइंटिंग ना, डिनोमिनेटर ही नहीं बन रहा, अब क्या करें? डिनोमिनेटर जबरदस्ती बना दो, इसको मैं ऐसे नहीं यस। लिख सकती, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकती क्या? यस। हाँ, अब बताओ, अब कुछ हो रहा है काम का? यस मैम अब लगा सकते। क्यों लगा सकते हैं?
मैम 0/, ये 0/∞ है। अच्छा, log 0 0 होता है? नो मैम, तो मैम ये 0/∞ फॉर्म में नहीं लगाएंगे। ये नहीं लगाएंगे। 1/x कहाँ जा रहा है अगर x 0 पॉजिटिव नंबर ले रहा है, मतलब पॉजिटिव साइड से, तो मैम 1/x जा रहा है। -∞/∞, -∞। तो डिनोमिनेटर 1/x किसको जा रहा है? इंफिनिटी को। यस। और न्यूमरेटर, जब लॉग में x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो लॉग वैल्यू किधर जाती है? -∞, तो ये कौन सी फॉर्म बनी? -∞/∞। तो क्या मैं एलिजिबल हूं अब लॉपिताल्स रूल अप्लाई करने के लिए? यस मैम। हम एलिजिबल हो गए, ठीक है। तो अब अप्लाई कर दो, बिकॉज दिस इज अ -∞/∞ फॉर्म, राइट। तो अब जब आप Yes. अप्लाई करोगे तो क्या होगा? न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो और फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो और फिर उसकी वैल्यू निकालो, है ना। न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 1/x, 1/x। और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -1/x²। है ना। तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? x² ऊपर और एक x से एक x कैंसिल, तो ऊपर -x बच गया, राइट। Yes. और जब x की वैल्यू पॉजिटिव 0 को अप्रोच करेगी तो -x किधर जाएगा? जीरो को अप्रोच करेगा ना। Yes. है ना। तो ये लिमिट वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर। Yes. हो गया क्लियर ये सबको? Yes. एवरीबडी? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी नाइस, चलो, गुड। सो हाउ आर यू गाइस फीलिंग? What about this now? I'm waiting to hear someone say just differentiate it now. But I think by now you have enough experience कि ऐसे तो नहीं करेंगे, है ना। क्या करेंगे फिर? What should तो be? मैम इसको ∞/∞ उस फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। वेरी नाइस। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं? इसको y = x⁻x ऐसे कर ले और फिर देखते हैं कुछ बन रहा है कि नहीं, राइट। Yes. तो log y = x times log of x, राइट। Yes. और पिछले क्वेश्चन में यही तो निकाला था, है ना। पिछला क्वेश्चन तो यही था, ये देखो। यस मैम। तो Yes. इसकी लिमिट क्या कहाँ जा रही है? 0 को, है ना। यस मैम। तो ये मेरे को पता है कि भाई लिमिट एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, लिमिट एज x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, ये किधर जाएगी? 0 को, राइट। और लॉग वाली, मुझे तो y की लिमिट निकालनी है ना। तो लॉग के अंदर जो चीज है वो कहाँ जाएगी जब ये वैल्यू 0 होगा? 1. 1 को जाएगी। तो इसका मतलब माई दिस वैल्यू इज 1, राइट। Oh मैम which one? This value has to go closer and closer to 1, right? Yes. And what is this? Y only. Yes.
मेरी लिमिट वैल्यू क्या होगी 1 यस ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कर लेंगे इसको। यस ओके जी, सो ऑल राइट, so you can try to attempt problems from your section 8.3 now. You have enough conceptual understanding, तो अब आप कर सकते हो इसको। हमारा अब जो चीजें रहती हैं वो है all the application of whatever concepts that we have done now. तो अब पूरा application based काम होगा, ठीक है। और compound interest, present discounted values, present value of the future claims, ecology, population growth, ये सब हम लोग देखेंगे। So that we will be doing in our next class, ठीक है। तो let's take up your doubts now, जिसके भी doubts हैं अभी। हाँ, the class is over, but we can discuss the doubts now. हाँ जी, बताइए। तो मैम 4th चैप्टर के कुछ डाउट्स मतलब बचे हुए थे, उसकी पीडीएफ भेजी थी मैम ग्रुप पे। ओके जी, ऑल राइट, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ग्रैब दैट। यस, गो अहेड। और मैम इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो कैसे फाइंड आउट करना है? Marginal revenue is differentiation of your revenue function. यस मैम। So तो मैम जो फर्स्ट वाला है उसमें खाली RX देकर छोड़ रखा है और एक CX दिया है, तो फर्स्ट वाले में is missing. ओके मैम। तो इसमें नहीं निकाल सकते, आंसर से रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। आंसर से शायद थोड़ा गेस लेना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्चुअली क्या फंक्शन था, बट इन्होंने नहीं लिखा ये फंक्शन क्या है। ओके मैम, बस ये। और देन मैम ए पार्ट है, एग्जामिन द लिमिट न्यूमेरिकली बाय मेकिंग द, ये वाला हो गया था मैम थर्ड क्वेश्चन। For the function h whose graph is given in figure 4.13, ग्राफ ढूंढते हैं पहले। ये कौन से एक्सरसाइज में से है? मैम 4th चैप्टर 4.2 मैम 4.3। 4.3। यस 4.3। 4.3 तो नहीं है ये। मैम लेट मी चेक। This is graph figure 4.13, figure 4.11, figure 4.12, figure 4.13. Yeah, okay. मैम थर्ड प्रॉब्लम उसे 4.4 का नाम दे रखा है, बट समझ गई। थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, for the function given in graph find limit as x is tending to a। हाँ जी, क्या डाउट है इसमें? आपको फंक्शन की लिमिट वैल्यूज निकालनी है। ए की वैल्यू 1 पे, 2 0 पे, सॉरी -1 पे, 0 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे, है ना। यस तो ग्राफिकली हम लिमिट नहीं निकाल सकते क्या? ओ मैम ग्राफ को देख, इसमें 4 पॉइंट। ये ग्राफ है, बताओ क्या ओ लिमिट? मैम 3। -1। ओ मैम खाली इसमें 3 वाले में डाउट था 3 में क्या डाउट है? कि
3 की साइड से जाएंगे और a टेंड्स टू 3, तो मैम इसमें फिर 3 पॉजिटिव निकालना है या नेगेटिव निकालना है? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3ht। लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑफ ht निकालनी है। यस तो अगर किसी एक पॉइंट पे निकालने को बोले तो आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालते हो, यस और यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही क्योंकि लेफ्ट हैंड से कुछ और आ रहा है, राइट हैंड से कुछ और आ रहा है, यस तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है। यस मैम। तो यही करेंगे। 4 पे क्या हो रहा है? और 4 पे मैम ये जा रही है इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे दोनों तरफ। साइड से भी राइट साइड से भी, बट इन्फिनिटी फिर को। भी लिमिट डजंट एग्जिस्ट। ओके मैम, हो जाएगा ये। ठीक है, यस और बताओ। और मैम इसमें 7th जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि न्यूमेरिकली बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो मैम ये जो ए और बी पार्ट है इसको मतलब कैसे इनिशिएट करेंगे इस टाइप की लिमिट में? यूजिंग अ कैलकुलेटर, यस मैम। h की कोई छोटी वैल्यू ले लो विच इज क्लोज टू 0। तो 0.1 ले लो, फिर 0.01 ले लो, फिर 0.001 ले लो, ऐसे कर लो। और मैम अगर विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर डायरेक्ट देते हैं तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2 power h - 1 लॉपिताल मतलब ओके 0/0 0 बस। है ना, यस मैम। और ये आज पड़ा है। और नो मैम, ये पहले का डाउट था, मतलब रफ कॉपी में सॉल्व कर रखा था इसलिए। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ ये आज पड़ा है, इसकी लिमिट निकालना। यस मैम, ये तो पढ़ा है आज, हम्म, ये हो जाएगा। वो वैसे कर लो। इसलिए इन्होंने कैलकुलेटर बोला है क्योंकि उनको पता है कि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है ये, ओके मैम। और अभी तक आपने लॉपिताल्स रूल भी नहीं पढ़ा है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ, यस मैम, तब सॉल्व किया था। और बताओ। और मैम इसमें जो ए पार्ट सी पार्ट है 8 का, हम्म, और मैम ये कैसे सॉल्व? ये भी मैम लोपिता रूल लग लॉपिताल्स रूल जाएगा। बता सकते हो। यस मैम, एक लास्ट डाउट था, ये 7th का बी पार्ट। क्या है यहाँ पे? s की वैल्यू टेंडिंग टू 0, यहाँ पे भी यस लॉपिताल्स लगा सकते हो। यस मैम, ये 0/0, सारा। यस आई थिंक यहाँ पे भी सेम चीज कर सकते हो। 5x² 5x², हाँ ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है, राइट। यस तो ये भी आपका वही वैल्यू है। यस। ओ मैम, एक ये 12th वाला कैसे करना था ये पूरा? ओ न्यूटन कोशेंट वाला क्वेश्चन, Let 12th। to be equals to this, write out the Norton quotient of f and show that this tends to f prime x in ये एक फंक्शन है, ठीक है। आपको इसका न्यूटन क्वोशंट बनाना है। इसका न्यूटन क्वोशंट बना सकते हैं। ओ न्यूटन कोशेंट, न्यूटन क्वोशंट क्या होता है? ओ मैम अभी याद नहीं आ रहा है। चलो, होता है ये न्यूटन क्वोशंट होता है ना। यस मैम। तो आपका फंक्शन क्या है ये? यस आप कैपिटल f ऑफ x प्लस h माइनस कैपिटल f ऑफ x डिवाइडेड बाय h ये करना है, यस मैम। और इसको इस फॉर्मेट में लिख के दिखा दो। ओ मैम, इस फॉर्मेट में कैसे चेंज? यही तो आपको गेम है, यही तो करना है। ये फंक्शन है। न्यूटन क्वोशंट क्या होगा इसका? ये यस
तो ये एक्चुअली क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच है। ठीक है, यस आप एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस एच एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स, राइट। यस अब आपको क्या देखना है कि किसके बराबर रखना है, इसके बराबर। अब इस फॉर्मेट में लेके आओ इसको। देखो क्या करना है, तो आप इस पूरे को बाहर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा, यस मैम, हो जाएगा ये। है ना। यस मैम। तो 1/g ऑफ एक्स प्लस एच टाइम्स जी ऑफ एक्स, इसको बाहर ले लिया और h को अंदर ले गए, ठीक है। और इधर अब आप ये देखो, यहाँ पे एक टर्म आएगी g ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, और इधर g ऑफ एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव, राइट। यस मैम। आप न्यूमरेटर में g ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ओके मैम, फिर बन जाएगा पूरी टर्म। ये फॉर्मेट लगाओगे और फिर आप यस लिमिट लगा लोगे एज h इज टेंडिंग टू 0। ओके मैम। फिर इसकी अलग लिमिट और इस पूरे की अलग लिमिट, ओके मैम। तो उस हिसाब से करना है। ओके और हो ये g ऑफ एक्स तो g ऑफ एक्स ही रहेगा, ये इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, f प्राइम एक्स, यस मैम। और ये माइनस एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या, g प्राइम एक्स, यस और यहाँ पे h की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1/gx होल स्क्वायर आ जाएगा। यस मैम। तो मेरी लिमिट एक्चुअली क्या बन गई, gx f प्राइम एक्स माइनस एफ एक्स जी प्राइम एक्स, और नीचे क्या है, g ऑफ x का होल स्क्वायर। यही तो मेरा क्वोशंट रूल होता है। यस मैम। तो ये मैं अपने क्वोशंट रूल को ही प्रूव कर रही थी, यस। ऐसे करना है, ठीक है। ओके मैम। कर लेंगे। यस मैम, हो जाएगा। और बताओ। और मैम इतना ही था डाउट। चलो जी, ओके, आई विल सी यू देन टुमारो। ओके, यस। टेक केयर, बाय बाय।